मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सिसांगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अब तक हमने कितने चैप्टर सीखे? अब तक हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 यानी कि कुल 5 चैप्टर हमने सीखे हैं बच्चों, राइट। तो बच्चों, हमारी एग्ज़ाम आ रही है, आपको पता ही है। दिवाली की जो एग्ज़ाम होती है ना हमारी, जो सेम 1 की, राइट। तो बच्चों, वो हमारी एग्ज़ाम आने वाली है, तो हमें रीड भी तो करना होगा। दिवाली से पहले आ जाती है ना बच्चों हमारी एग्ज़ाम। 5 नवंबर को हमारी एग्ज़ाम शुरू होती है। तो बच्चों, हिंदी की एग्ज़ाम में क्या आने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स की होगी बच्चों। पूरी की पूरी एग्ज़ाम आपको MCQ बेस्ड होंगी, मतलब कि पूरी एग्ज़ाम में तमने બધું MCQ રૂપે જ આપેલું હશે। જેમ કે MCQ હોય તેમાં તો 4 ઓપ્શન હશે જ, પછી બ્લેન્ક્સ હોય તો બ્લેન્ક્સમાં પણ 4 ઓપ્શન આપેલા હશે। ખરા ખોટામાં પણ ઓપ્શન કે સાચું હોય તો એ ટીક કરો, ખોટું હોય તો બી ટીક કરો। પછી જોડકા હશે, પછી ખાલી જગ્યા હશે, પછી એક શબ્દમાં ઉત્તર હશે। તો બધી વસ્તુમાં તમને ઓપ્શન આપેલા જ હશે। પછી એક વાક્યના જવાબ લખવાના હશે, તો એમાં પણ એક વાક્યના આન્સર લખેલા જ હશે। એમાંથી તમારે એક સાચો વિકલ્પ ચૂઝ કરવાનો રહેશે, રાઈટ। એટલે તમારો આન્સર સબમિટ થઈ ગયો, રાઈટ બચ્ચો। પણ આ બધું તમારે રીડ કેમાંથી કરવાનું છે? તમારે બધી વસ્તુ તમારે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ રીડ કરવાની રહેશે। અને બીજો નંબર આવે છે તમારી અભ્યાસ પુસ્તિકાનો, રાઈટ। તો બધું તમારે અભ્યાસ પુસ્તિકામાંથી રીડ કરવાનું રહેશે અને તમારે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાંથી રીડ કરવાનું રહેશે, રાઈટ। ટેક્સ્ટબુકમાં ક્વેશ્ચનના આન્સર આપણે CWમાં લખીએ છીએ, રાઈટ। તો એના આન્સર આપણે CWમાંથી રીડ કરીએ, રાઈટ બચ્ચો। તો આજે હું તમને શું કરાવવાની છું? યસ, આજે હું તમને રિવિઝન કરાવવાની છું। કયા ચેપ્ટરનું? ચેપ્ટર નંબર 1 અને 2। ટોટલ માર્ક્સ 40ની એક્ઝામ હશે અને ટોટલ ચેપ્ટર આપતા 1, 2, 4, 5, 6 છે, એટલે મતલબ કે કુલ 5 ચેપ્ટર છે, રાઈટ। તો આટલા ચેપ્ટર જ આપણે એક્ઝામમાં કમ્પ્લીટ કરવાના રહેશે, રાઈટ। તો એમાંથી આજે હું તમને 2 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરાવવાની છું। પૂરેપૂરા એક વખત આખા શોર્ટમાં સમજાવી દઈશ અને પછી એના ક્વેશ્ચન આન્સર તમને રીડ કરવા માટે આપી દઈશ, રાઈટ। તો બાળકો, આની સાથે પણ એક વર્કશીટમાં હું તમને એક પેપર આપીશ, એમાંથી તમારે રીડ કરવાનું, પહેલાં રીડ કરી લેવાનું, પહેલાં વિડીયો જોઈ લેવાનો આવડા, અને પછી તમારે એના આન્સર લખવાની ટ્રાય કરવાની બાળકો। જાતે લખશો તો 100% થોડાક ખોટા પડશે, થોડાક નહીં આવડે, બીજી વખત ટ્રાય કરવાની અને પછી તમને આપેલા આન્સરમાં એના આન્સર જોવાના રહેશે। પછી તમારે જોવાનું કે આ આન્સર કેટલા સાચા પડે છે। ખોટા પડે તો બાળકો ડરવાનું નહીં, બીજી વખત વાંચવાનું, જેના લીધે શું થશે? તમને પ્રેક્ટિસ થશે બાળકો, રાઈટ? યસ। તો ચેપ્ટર નંબર 1, પ્રાર્થના। બાળકો, પ્રાર્થનાનો મતલબ તો તમને ખબર જ છે કે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, રાઈટ। અને આપણે આપણા મનમાં જે વાત હોય એ ભગવાનને કરીએ છીએ। તો આ પ્રાર્થના ચેપ્ટરમાં પણ આપણે એમ જ કરીએ છીએ, રાઈટ બાળકો। તો હવે હું તમને ચેપ્ટર થોડુંક સમજાવું છું શોર્ટમાં, રાઈટ। આલોકિત પથ કરો હમારા હે જગ કે અંતર્યામી। आलोकित નો મતલબ થતો तो કે प्रकाशित, और अंतर्यामी मतलब के मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। जो लोग हमारे मन की बात जान जाते हैं उसे हम अंतर्यामी कहते हैं। कि हे जग के स्वामी, हे हम सबकी मन की बात जानने वाले प्रभु, हमारा पथ मतलब कि हमारा जो रास्ता है वो प्रकाशित करो। हमारे रास्ते में कई सारी बाधाएं आ गई है, ये कोरोना रूपी, तो आप इसको हटाओ, हमारे मन में उजाला भर दो, शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। भगवान है वो जड़ मतलब के निर्जीव, और चेतन मतलब कि सजीव। तुम तो सजीव और निर्जीव सबके स्वामी हो, तो हमें शुभ्र मतलब कि शुभ अच्छा प्रकाश दो, और हमें स्वच्छ दृष्टि दो। स्वच्छ मतलब कि साफ, हम जो कोई भी चीज़ हमारे सामने आए उसे साफ साफ देख सके, ऐसी हमें दृष्टि प्रदान करो। दृष्टि का मतलब क्या होता है बच्चों? नज़र, राइट। तो भगवान हमें हमारे रास्ते में भगवान कई सारी बाधाएं आ गई है,
तो आप उसे हटाकर उसे दूर करो, है जो उसको प्रकाशित करो। हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने रास्ते पर अच्छे से चल पाए। तुझ हमारे मन के है प्रभु, दुर्विचार सब दूर करो। हे भगवान, અમારા મનની અંદર જે ખરાબ વિચાર છે, કોઈનું ખરાબ કરવાના જે તુચ્છ વિચાર, मतलब કે साव छोटी सोच, हमारे अंदर की जो छोटी सोच है उसको भगवान दूर निकालो। हमारे मन में जो दुर्विचार है हमने पाल रखे हैं सबके प्रति, वो भगवान दूर करो, हम ऐसी विनती करते हैं। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हमें शक्ति भरो। हमें भगवान केवल आपसे ही प्रेरित होना है। प्रेरित होना मतलब कि हम केवल आपसे ही सीख लेना चाहते हैं। हम केवल आपसे प्रेरित हो, ऐसी हमें सीख दो, ऐसी हमें शक्ति भर दो। राइट, हमें ऐसी शक्ति दो कि भगवान हम किसी बुरे व्यक्ति का अनुकरण ना करें और केवल भगवान में आस्था रखें और केवल अपने से बड़ों की ही बात मान सके। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में। मतलब कि भगवान ने આપણે એમ કહી છે કે ભગવાન તમે જ અમારા ભાઈ છો, તમે જ અમારા મિત્ર છો। બંધુનો મતલબ થાય છે કે ભાઈ અને મિત્ર, રાઈટ। તમે જ અમારા ભાઈ છો, તમે જ અમારા મિત્ર છો। तुम ही पिता हो मतलब कि તમે જ અમારા પિતા સમાન છો, તમે જ અમારા ભાઈ છો, તમે જ અમારા મિત્ર છો, તમે જ અમારા માર્ગદર્શક। તમે અમારા માર્ગદર્શક मतलब કે અમને રસ્તો બતાવવાવાળા, मतलब કે જીવનમાં કેટલી મુશ્કેલીઓ આવે છે પણ એમાંથી માર્ગ બતાવવાવાળા પણ તમે જ છો ભગવાન। એટલે અમે ખાલી તમારાથી જ પ્રેરિત, मतलब કે અમે તમારાથી જ શીખ લેવા માંગીએ છીએ। બીજા કોઈ આવીને અમને અવળા રસ્તે ચડાવી જાય એવું ભગવાન પ્લીઝ ના થવા દેતા। રાઈટ, આપણે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। शक्ति और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन में। शक्ति और आलोक तुम्हारा मतलब कि आपके पास भगवान जितनी शक्ति है ये पूरे आलोक में, मतलब कि पूरे जगत में फैलाયેલી બધી જ શક્તિઓ તમારી જે છે એ ભગવાન અમે અમારા તન મનમાં, તન એટલે કે શરીર અને મન એટલે કે આપણું મગજ વિચારમાં અમે उतारी लिए। राइट, तो बच्चों ये पोएम थी वो हमारे वेद से ली गई है और हमारे 4 वेद है कुल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। राइट बच्चों, ये चारों के चारों वेद दिए गए हैं, उसमें से किसी एक में से ही ये प्रार्थना ली गई है बच्चों। तो ये पोएम पूरी होती है बच्चों, नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, वो मैं आपको CW में भी लिखने के लिए वो मैं आपको बुक में लिखने के लिए देती हूँ बच्चों, तो वो आपको रीड करने हैं बच्चों, क्योंकि ये समानार्थी शब्द और विरोधार्थी शब्द भी आपको आने चाहिए। वो आपको शब्दार्थ में भी से भी पूछे गए होंगे, तो आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। राइट, तो आपको एक बार शब्दार्थ में भी ध्यान दे देना है। फिर बोलने की बारी और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर जो हमने CW में लिखे हैं वो भी एक बार रीड कर लेना है। फिर सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ, मतलब कि वो जो हमारा MCQ वाला पोर्शन है ना टेक्स्ट बुक में, वो भी हमें रीड कर लेना है बच्चों। ये सब जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना बच्चों, वो आपको रीड करनी है। राइट, फिर भाषा संसार में से आपको शब्दों का मिलान कीजिए, मतलब कि जोड़का जोड़ो એ પણ રીડ કરવાના છે। રાઈટ, બધું તમારે પેપર સ્ટાઇલ મુજબ જ તમારે રીડ કરવાનું રહેશે। રાઈટ, તો હવે હું તમને ચેપ્ટર નંબર 1 તો સમજાવી દીધું, હવે ચેપ્ટર નંબર 2 समझाविस, सच्चा न्याय। बच्चों ये कौन सी कहानी थी? ये राहुल की कहानी थी बच्चों। राइट, राहुल और यशोधरा की कहानी थी। राहुल और उसके पिता के जीवन में जो हो रहा था ना, वो राहुल और यशोधरा उसकी बातें कर रहे थे। राइट, तो बच्चों इस सच्चा न्याय की कहानी में शुरू करती हूँ कि क्या क्या आने वाला है इस कहानी में। राहुल नाम का एक बच्चा छोटा सा लड़का था, उसे एक दिन ना कहानी सुनने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो एक दिन वो अपनी माँ से जिद करता है और उसकी गोद में जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि माँ माँ मुझे कहानी सुनाइए ना, मेरा बड़ा जी कर रहा है कि मैं इस समय कहानी सुनूं। तो उसकी माँ बहुत व्यस्त थी काम में, तो बोलती है कि बेटा इस समय तो मेरे दिमाग में कोई कहानी है ही नहीं, तुम फिर कभी आना, अभी तो मुझे काम करने दो। फिर बोलती है फिर वो बोलता है राहुल कि नहीं नहीं माँ, कोई भी कहानी कह देना, मुझे
कोई भी चलेगी, आप कोई भी कहानी कह दो। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा इस समय तो याद ही नहीं कौन सी कहूँ। तो फिर बोलती है सोचकर कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिता के जीवन की ही कहानी सुनाऊंगी। वो जब तुम्हारे जितने थे, मतलब तुम जैसे छोटे हो ना अब, वैसे तुम्हारे पिता भी छोटे थे। तो उसके जीवन में एक घटना घटी थी, तो वो मैं बता देती हूँ तुम्हें। तो राहुल बोलता है तो ठीक है माँ, पिताजी के जीवन की घटना ही बता दो। રાહુલના પપ્પાનું નામ શું હતું બાળકો? સિદ્ધાર્થ. એની મમ્મીનું નામ, એના મમ્મીનું નામ યશોધરા અને રાહુલ, રાઈટ? તો આ ત્રણેયનું નાનું ફેમિલી હતું. અને પછી વચમાં એક દેવદત્ત આવે છે. દેવદત્ત કોણ હતો? રાહુલના પપ્પાનો ભાઈ, મતલબ કે એના કાકા હતા, એટલે એનું નામ હતું દેવદત્ત. સિદ્ધાર્થ અને દેવદત્ત બંને ભાઈઓ હતા, રાઈટ? તો આ બધું વસ્તુ યાદ રાખજો બાળકો. યસ, આમાં કોઈ પણ નામ પૂછેલું હોય કે રાહુલના પપ્પાનું નામ શું હતું, તો સિદ્ધાર્થ. રાહુલના કાકાનું નામ તો દેવદત્ત, એની મમ્મીનું નામ તો યશોધરા, રાઈટ? યાદ રહી ગયા ને બાળકો? તો હવે એ પછી એના મમ્મી એને કહાની કહેવાની શરૂઆત કરે છે कि बेटा तुम्हारे पिताजी जब छोटे थे तो उसे भी शिकार पर जाने की एक दिन शिकार पर जाने की नहीं, सॉरी, उसको एक दिन सैर करने जाने की इच्छा होती है। तो वो उपवन में भ्रमण के लिए जाते हैं। तो प्रातः काल का दृश्य था, वो बड़ा लुभावना था, मतलब कि अपने मन को बहुत आकर्षित कर रहा था। सूर्य की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल गई थी और चारों ओर फैले हुई किरणें उसके मन को आकर्षित कर रही थी। तो राहुल बोलता है फिर कि उद्यान में तो फूल भी खिले होंगे ना माँ? राहुल उसकी माँ को क्वेश्चन करता है कि माँ फूल भी तो खिले होंगे। उसको ना बड़ा मज़ा आ रहा था कि पूरे वातावरण का उसकी मम्मी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, तो सुन रहा था, तो उसे भी मज़ा आ रहा था। वो भी क्वेश्चन करता है कि माँ फूल भी खिले होंगे? तो उसकी माँ कहती है हाँ हाँ फूल भी खिले थे। तो ऐसे रोमांचित वातावरण में एक दुर्घटना घटती है बच्चा। तो वो उसका बेटा बोलता है कि क्या घटना घटी माँ, बताओ ना जल्दी। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे पिताजी जाते थे, रास्ते में बीच से कहीं एक घायल पड़ा हुआ हंस गिर कर उसके कदमों में पड़ता है। तो राहुल तो डर जाता है कि फिर क्या हुआ माँ? तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे पिताजी ने उस हंस के शरीर को देखा, तो उसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था, मतलब कि एक तीर लगा हुआ था। तो उसके कारण वो जो हंस था वो डर से कराह रहा था। तो तुम्हारे पिताजी ने वो तीर को निकाल दिया और उसके घाव को मरहम जैसा फील हो, मतलब कि उसके घाव पर मरहम लगाया और उसके पीठ पर थोड़ा थपथपाया, मतलब कि थोड़ा सहलाया। तो उस हंस को थोड़ी राहत हुई। उसी बीच क्या होता है बच्चों? उसी बीच देवदत्त आ जाता है। देवदत्त आकर उसे बोलता है कि ये हंस मेरा है, क्योंकि उसे मारकर मैंने गिराया है, मैंने इसका शिकार है इसलिए किया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। तो सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने तो इसे मार दिया था। जान बचाने वाला ही बड़ा होता है। मैंने इस हंस की जान बचाई है, इसको जीवन दान दिया है, तो जीवन दान देने वाला सबसे बड़ा होता है। तो बच्चों क्या होता है, इस दोनों में लड़ाई हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि न्यायालय तक पहुंच जाती है। न्यायालय का मतलब क्या था बच्चों? कि न्याय करने का स्थान होता है, उसे न्यायालय कहते हैं। और न्यायाधीश का मतलब होता है कि जो न्याय देता है, जो न्याय करने वाला होता है, उस आदमी को न्यायाधीश कहते हैं। तो फिर क्या होता है, दोनों में विवाद हो जाता है, मतलब कि दोनों आपस में बहस पर उतर आते हैं कि ये हंस मेरा है और वो बोलता है ये हंस मेरा है। तो दोनों आपस में बातें और बहस कर ही रहे थे बच्चों। तो इसी बीच क्या हुआ कि फिर वो सब बहस कर रहे थे ना, तो वो दोनों न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। तो राहुल बोलता है कि माँ इतनी बात बढ़ गई तो पूरे गांव को भी पता चल गया होगा ना कि पिताजी और चाचा जी दोनों लड़ रहे हैं हंस की बात में। तो उसकी माँ बोल रही है कि हाँ बेटा, ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। फिर तो वो बोलता है कि न्यायाधीश ने क्या निर्णय लिया होगा? राहुल पूछता है अपनी माँ से। तो उसकी माँ भी उसे सामने क्वेश्चन करती है
कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि न्यायाधीश क्या निर्णय देंगे, तुम होते उसकी जगह तो तुम क्या निर्णय सुनाते। तो राहुल बोलता है कि माँ, हंस तो मैं पिताजी को ही दूंगा, क्योंकि उसने हंस की जान बचाई है, और आप ही तो कहती हो ना कि जान बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है सबसे, तो मैं पिताजी को ही हंस देता। पर बात मेरी नहीं है माँ, ये बात छोड़ो, आप ये बताओ कि फिर क्या किया न्यायाधीश ने, किसे हंस दिया, किस पर उसका हक था। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा, तुम जो करते वो ठीक ही है, क्योंकि तुम सच्चा न्याय दे रहे हो। तो फिर न्यायाधीश ने क्या किया बच्चों कि दोनों को, सिद्धार्थ को और देवदत्त को, दोनों को सामने खड़ा किया और दोनों को बीच में वो हंस लेकर खड़े रह गए और बोला कि मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ये हंस ही तय करेगा कि ये किसके पास रहने जाने वाला है, मतलब कि वो किसके पास जाना चाहता है, वो ये खुद ही तय करेगा। तो हंस को जैसे ही न्यायाधीश ने छोड़ा तो वो दौड़कर सीधा सिद्धार्थ के कदमों के पास चला जाता है। बच्चों, हो गया ना न्याय, क्योंकि जान बचाई थी सिद्धार्थ ने। तो जो जान बचाता है बच्चों, वही तो सबका प्रिय बन जाता है ना। तो हंस को भी इतनी समझ थी कि वो उसके देवदत्त के पास ना जाए, क्योंकि उसने तो उसकी जान को हानि पहुंचाई थी, उसको मारना चाहा था, तो वो उसके पास जाता ही नहीं ना बच्चों। तो वो सिद्धार्थ के पास गया। तो बच्चों, हो गया ना न्याय कि जो जान बचाने वाला था उस पर ही उसका पूरा अधिकार था, राइट। तो फिर राहुल बोलता है कि यस माँ, मेरी जीत हो गई, मैंने बताया था ना आपको। तो फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और राहुल खुश होकर उछल कूद करता हुआ चला जाता है खेलने के लिए, राइट बच्चों। तो ये थी कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चों कि हमें अपने स्वार्थ के खातिर किसी पशु पक्षी की जान को हानि पहुंचानी नहीं चाहिए। ये शिकार करना तो केवल हमारा ही स्वार्थ है बच्चों, तो हमें अपने स्वार्थ के खातिर किसी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, राइट बच्चों। तो यहाँ पे बोलने की बारी और लिखने की बारी का क्वेश्चन आंसर है वो आपको रीड करने हैं। फिर एमसीक्यू दिए गए हैं कि राहुल के पिता का नाम क्या था बच्चों? यस, सिद्धार्थ था। પછી कायल हंस की रक्षा किसने की? सिद्धार्थ ने। પછી इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। फिर बहुवचन रूप है, रीड करने हैं, लिंग बदल कर लिखिए, वो भी रीड करना है। फिर खाली जगह दी गई है, मतलब कि खाली जगह मतलब के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो वाला ऑप्शन दिया गया है, तो वो भी आपको रीड कर लिखना है। लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको झटके से याद रह ही जाएगा बच्चों। फिर उचित सर्वनाम चुनकर खाली जगह पूरी कीजिए, वो भी आपको करना ही है। तो ठीक है बच्चों, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 और 2। आपको मैंने फिर से रिवाइज कर दिए और क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको बता दिया, राइट बच्चों। तो अब आपको ये रीड करना शुरू कर देना है क्योंकि आपके एग्जाम आने वाली है, राइट बच्चों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए 2 चैप्टर के साथ। ये दोनों कर लिए तो अब मैं आपको 4 और 5 कराऊंगी, राइट बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, हैव अ नाइस डे।